everyone, welcome to my YouTube channel Cbse Courses with Reeti. Today we are going to understand a very important topic of class 10th science, that is carbon and its compound. It's from your chemistry class 10th NCERT textbook. We are going to refer NCERT textbook only and we are going to understand this topic very clearly. Now the first question that comes to our mind is, why do we have to learn about carbons? What is so special about it? Why not any other element? So, clearing these all doubts, first let us talk about carbon. Carbon, whose atomic number is 6. This means that in the periodic table, the number of carbon is 6. And if you remember your previous classes, atomic number refers to that it has 6 protons and 6 electrons. Okay, quite understanding. Now carbon is very special. Carbon has so many compounds that we have an organic chemistry for that, in which we'll only learn about the carbon and its compound. And also there are millions of carbon compounds and more yet to find. Everything around us has carbon, whether our clothes, wood or anything. Everything comprises of the element carbon. And as I have told you already, its atomic number is 6, which means it has 6 protons and 6 electrons. Now, if I do its electronic configuration, means KLMN cells. I hope you do remember what are these. I am here basically talking about Bohr's. Bohr's model. Class 9th में सब पढ़ा है, right? Even so, if you are having any confusion, so basics se padho, go to the previous videos, check out about the Bohr's model, just search Bohr's model. Watch some videos and then come back here. Okay. 6 electrons जो होते हैं वो सेल में प्रेजेंट होते हैं, like 1, 2, 3 and so on. Cells are there. Let's say I am talking about carbon here. Okay. Now, how will I know which cell have how many electrons? So, K cell में हमेशा maximum 2 electrons होते हैं, तो 6 minus 2 is 4 in L cell. But ये octet नहीं है, because 8 होता अगर L cell में electrons, then it would be octet, it would be complete cell और stable होता. So now it has the tendency to react. इसकी valency 4 है, because it either need to take 4 electrons or give 4 electrons in order to become a stable, right? अपना cell complete करने के लिए. L cell में 8 maximum होते हैं, M में भी 8 and ऐसे होता है, और K में 2 होते हैं. But here in L cell we have only 4 electrons, means either it has to lose 4 electrons or gain 4 electrons. इन दोनों में से कोई केस होगा जब जाके ये 8 complete होगा, and we can say that its cell is complete, it's a octet now. तो first KL cell ये, तो let me just rub this M. Okay. So it will look something like, K में सबसे innermost को हम K cell कहते हैं, so 2 cells, 2 electrons and बाहर में 4 electrons. So 1, 2, 3, 4. So the diagram according to our Bohr's model for carbon is this. Okay, this is for carbon. Now you will ask me why we are learning this. So of course, before starting any chapter, first we should know that what are we talking about. And please mind that these all questions are actually indeed very important, because it can come in MCQ, the atomic number and about its valency. This all can come. Now let us go. It was just a recapitulation of what we have already learned, studied in our previous chapter. Now recapitulation part is done. Let us come back to our class 10. Now I was speaking that its outer most cell. This refers to cell. I hope you all know that. 4 electrons. Now 2
become, now to become valence or octet, let's say octet, ठीक है. To become octet, octet means outermost cell में 8 electrons है, which makes it stable. ठीक है. So it either have to gain 4 electrons or lose 4 electrons. लूज का गेन तो समझ आ रहा होगा, 4 है, 4 और हो जाएगा तो 8 बन जाएगा, इट विल बी स्टेबल. नाउ व्हाई टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अगर ये 4 चला गया तो सिर्फ k सेल बचेगा, एंड k में अगर 2 है देन इट्स अ वैलेंस, वैलेंसी नहीं है, इट्स अ स्टेबल एलिमेंट, इट्स अ स्टेबल एटम. ठीक है. So it either have to gain 4 electrons or lose 4 electrons, but it can do nothing. It neither can gain, it neither lose. You will ask me why, right? You will say why it can't gain 4 electrons, why it can't lose 4 electrons. In 9th class we have studied that all the elements can lose electrons or gain electrons. We learnt about valency, so why not carbon? So this is what special carbon is all about. Okay, it's a very special characteristic, that is tetravalency. So tetravalency means that the outermost shell has 4 electrons. This is what your tetravalency is all about, and it's a very important feature of our carbon. Why? So let me tell you first that why it can't gain 4 electrons. It can't gain 4 electrons because in our carbon we know we have 6 protons. Let me just say it has 6 protons along with neurons. Okay. Now if I am trying it to gain 4 electrons, so means outermost shell में 1 2 3 4. ठीक है. It will something look like this. Now the outermost में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8. Well done. We have 8 electrons in our outermost shell. But if you see now, so the total number of electrons here are 10 and total number of protons are 6. So it is actually not possible for 6 protons to hold on to 10 electrons. हमारा atom क्या होता है? It's neutral. It's neither positive nor negative. Why? Because number of protons are equal to number of electrons and they cancel each other. This is what we have studied already. But here, if I will have total number of electrons 10 and total number of protons 6, then actually for protons it is not possible to hold on to 10 electrons. So हम gain नहीं कर पाएंगे. Carbon will not be able to gain electrons. And this is the reason because 6 protons can't hold on to 10 electrons. This is the reason. Okay, this is the reason it can't gain 4 electrons, because 6 protons can't hold on to 10 electrons. Quite simple, right? ठीक है. It can't gain 4 electrons. ठीक है, gain समझ आ गया. Now why it can't lose 4 electrons? Although in this class we are actually not going into very depth that why it can't lose 4 electrons. So from my side I can just tell you maximum. I'll try to explain, but still in this topic, in this particular thing about lose of 4 electrons, you just have to keep that term in your mind. So it can't lose 4 electrons because let me just write losing okay, let me just rub it. I am writing in the form of notes, so you can just copy it down. Because for losing electrons it will need very high ionization
energy. ठीक है, this is what the reason is. Ionization, let me write it in the bold as well. Ionization. Now this is quite confusing. This is quite confusing, so let me just try to elaborate it for you. Let me just rub the 4 electrons. ठीक है, so ठीक है, it's now like it was 4 electrons outermost shell, 6 protons, 6 electrons in total. Now I am thinking about losing these 4 electrons. So actually it is not possible, because these 6 protons and these 6 electrons have high energy to be together. They are holding on to together. And for breaking this on, ये का जो bond बना हुआ है, connection बना हुआ है, to break it apart, I need quite a lot of energy. And that much energy is actually not possible. You can just continue, and that's not possible. इतनी energy चाहिए, that to get that much energy, it is actually impossible. ठीक है? So what we did is, we learned about, it was just a recapitulation, this part, that how many atomic number is 6, that is 6 protons, 6 electrons. We discussed about its Bohr's model, and this is the diagram. You must learn it. It's quite important, although I am going to teach you more about it. It has total number of electrons. Now total number of electrons are 6, total number of protons are also 6. Now to become octet or to become valence, it either have to gain electrons or lose electrons. It can't gain electrons because total number of electrons will be 10 if it gains 4 electrons. तो octet तो बन जाएगा, लेकिन protons का number 6 ही रहेगा, and 6 protons can't hold on to 10 electrons. ठीक है? Similarly, it can't lose the 4 electrons. ये ऐसे नहीं हो सकता. Why? Because it needs very high ionization energy. बहुत ज़्यादा energy चाहिए. That is actually not possible. It is impossible. This is quite, we have talked about carbon. Let's dig into more details now. Now we are going to talk about covalent bond. Ionic bond तो पता होगा, I believe, even though नहीं भी पता है. So in this particular topic, for now, we are not going to discuss about ionic compound. I'll surely tell you what it is in upcoming videos, but as it is just an introduction video, let's first dig into the details, the description, the detailed information about carbon. So carbon has the tendency to form covalent bond. Now you will say, what is covalent bond? A very genuine question. So the bond formed by sharing of electrons. Now this is quite different. Okay, let me just tell you about ionic compound a little. Ionic compound में क्या होता है? Ionic bond, let's say, उसमें क्या होता है? It has ions. Oh no, let me just try to. The bond formed by gaining or losing electrons. ये gain या loss से बनता है. We are going to dig about it in detail in our topic metals and non-metals, but for here, just that you can understand this bond in more detail, because I believe that you must know about ionic compound even a bit. Okay, because as we have learned chapter 1, we have already studied. So gain या loss of electrons से बनता है ionic bond. If you have watched my video on oxidation and reduction, this is going to be super easy for you, I believe. And if you haven't watched it yet, please go back to my channel, search for the oxidation and reduction videos of class 10 chapter 1. This will be super easy for you then. Okay, let me take example is Na and Cl. Na
Cl. ठीक है. Now the metal, it's a metal, it has the tendency to lose electron. Means किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देने की इसकी हैबिट होती है. तो लेट्स से इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया to Cl. It gave one electron to Cl. ये वैलेंसी के इस बेस पे होता है. Na की वैलेंसी 1 होती है, so it obviously gave one electron to Cl. तो Na minus electron is equals to Na positive and Cl plus electron give me Cl negative. Let me just try to tell you once again. Although ये मैं same topic repeat कर रही हूँ and I am requesting you to go back to the previous video and watch it. But Na, the metals have the tendency to lose electron. तो इसने क्या किया? It loses the electron. और Cl की tendency होती है to gain electron, so it gained the electron. ठीक है. अगर मैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 की बेसिस पे बोलूँ, सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ. तो अब ऐसे समझते हैं, इट हैज़ इट्स एटॉमिक नंबर इज 11. ठीक है. लेट मी जस्ट चेक इट वंस. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन. Okay. Okay, so 11 is the atomic number of 11. तो 11 atomic number इसका मतलब क्या हुआ? It has 11 protons and 11 electrons. और जैसा कि मुझे पता है, there are equal number of protons and electrons are there, hence it is neutral. इतना तो पता है, right? मेटल जिसकी एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब उसके पास 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है, और दे कैंसिल आउट ईच अदर, हेल्स दैट इज न्यूट्रल. तो अब लेट्स से इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया. वाई क्यों दिया? बिकॉज इट्स अ मेटल, और मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन. वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस फर्दर मोर, बट हियर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, 11 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन. अब देखो 11 प्रोटॉन्स आर देयर एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो अगर मैं कैंसिल कराऊंगी, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, फिर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, सिमिलरली इसी तरीके से होगा, लेकिन लास्ट में एक प्रोटॉन तो बच जाएगा, एक प्रोटॉन तो मेरा बच जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो 10 ही है एंड प्रोटॉन सब 11 है, एक ज़्यादा है प्रोटॉन. सो इन दिस केस वी विल हैव वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन that will not get cancelled. अगर अब ये कैंसिल नहीं होगा, therefore the charge of the sodium will be positive and it will form Na positive और sodium positive. ठीक है, इतना समझ आया? Okay, let me now rub it. Similarly Cl एक नॉन मेटल होता है who has the tendency to gain electron, and its atomic number is 17, means it has 17 protons and 17 electrons, and this together again is neutral. No doubt, quite easy, right? अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल बिकम 18 इलेक्ट्रॉन. यही होगा. तो ये अब हो गया 18. अगेन वही कैंसिलेशन होगा, लास्ट में वी विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका चार्ज हो जाएगा Cl नेगेटिव. चार्ज विल बी Cl नेगेटिव. ठीक है. एंड ऑल्सो वन ग्रेट थिंग अबाउट इस इज कि Na जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इट फॉर्म्स 281. Cl इसका 17 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287. तो कैन यू सी, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देगा तो सोडियम वैलेंस हो जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा. वैसे ही अगर Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा तो ये भी वैलेंस बन जाएगा. सो कैन यू सी दैट इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दे बोथ आर बेनिफिशियल है. तो ये तो होता ही होता है. दिस वॉज जस्ट द इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन.
कमिंग बैक हियर, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन की पावर की वजह से Cl नेगेटिव हो जाता। अगर ऐसे ही इसमें तो इसकी वैलेंसी 1 थी। नाउ लेट्स से यू हैव एनी नॉन मेटल और एनी मेटल कंबाइनिंग टुगेदर, ये +2 भी हो सकता है अगर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो। सिमिलरली not in the case of sodium and chlorine obviously, but in any other case of any other metal or any other non metal वो केस हो सकता है। तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव अपोजिट्स अट्रैक्ट, और इसमें बेसिकली आयनिक कंपाउंड बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके बनाते हैं NaCl, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का जो कंपाउंड बनता है ड्यू टू देयर चार्जेस, और ये चार्जेस कैसे आते हैं, ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे बनता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में वी आर क्लियर। बट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ लूज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लेट अस सी। ये एक कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, इट्स वैलेंसी इज 4, ठीक है। एंड हाइड्रोजन है मेरे पास, इसकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होती है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का अगर देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अगर इसको मैं एक और इसको एक और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो गया तो ये डिप्लीट बनाता है। दिस इज अगेन बैलेंस ओके। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन आगे समझो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आगे, ये भी एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। डोंट गेट हाइप्ड अप कि क्या हो रहा है, जस्ट कीप ऑन सेइंग। तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए था, हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम डिप्लीट। तो अब ये शेयर करेगी, ये यहाँ अब हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो थे, और साथ ही ये इनके भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तब देखो तो इस हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ, और बदले में कार्बन ने भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट बन गया, और 4 हाइड्रोजन की हेल्प से, बिकॉज ये टेट्रावेलेंसी था, इट फॉर्म्ड 4 सिंगल बॉन्ड, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड इसने बनाया। एंड नाउ इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सो कोवलेंट बॉन्ड में गेन या लूज नहीं हो रहा है, ये बस शेयर करते हैं। कार्बन एक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उधर से हाइड्रोजन दे रहा है, और कार्बन बोल रहा है ये दोनों अब मेरे हैं, और हाइड्रोजन बोल रहा है ये दोनों मेरे हैं, ठीक है। क्या हुआ यहाँ, हाँ हाइड्रोजन गेव 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन इन रिटर्न गेव 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके बोला नाउ दिस 2 आर बाई इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे ही सारे हाइड्रोजन ने किया। नाउ कार्बन टुक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल द हाइड्रोजन एंड इट हैज इट्स ओन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स ओन, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड गॉट फ्रॉम शेयरिंग, एंड उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके बोला दैट नाउ आई हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इससे ये कंपाउंड एक बन गया, दैट इज बाय द कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ आप बॉन्ड के बदले कंपाउंड भी लिख सकते हो, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, द कंपाउंड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए मैं एक इजी एग्जाम्पल देती हूँ। दिस इज वन फ्रेंड ऑफ योर्स एंड दिस इज another friend of yours. It has one blue pen and you do also have one blue pen. But case of ऐसा है, although I know it's not really good example, but still for just understanding, let's say इसके पास एक पेन है और इसके पास भी एक पेन है, but you say that I want 2 pens. सेम ये भी कहता है want 2 pens. अब दोनों को 2 पेन्स चाहिए इन टोटल, एक एक तो ऑलरेडी है, मेरे पास एक पेन है, इधर भी एक पेन है, एक पेन इसके पास है, एक पेन इसके पास है। नाउ अब दोनों को 2 पेन चाहिए, तो दे विल डू व्हाट,
दे विल से दैट ओके यू नीड 2 पेन्स, आई विल शेयर माई पेन, यू ऑल्सो शेयर माई पेन. तो अब हम दोनों का लेट से ये दोनों जो है ये कॉमन है हम दोनों के बीच. हम दोनों अपने पेन यहाँ रख देते हैं. दिस वन इज योर पेन, दिस इज माई पेन. नाउ दिस इज इन कॉमन, we both can use. So in this scenario तुम कहते हो that now I will have 2 pens and you can also say that you have 2 pens. और ये 2 पेन हमारे कॉमन के हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, they actually share the 2 pens. कभी ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मेरे पेन है, कभी ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मेरे पेन है. इस तरह से शेयर करेंगे. और दोनों के पास 2-2 पेन हो गए. इनिशियली एक एक पेन था बट दे शेयर द पेन्स, और अब दोनों के पास 2-2 पेन है, दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. In the same way, hydrogen wanted 1 electron. Carbon ने कहा okay, I will give you 1 electron and you give me 1 electron. Let's share the electrons. तो कार्बन ने इस वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया. सेम उसने इस वाले हाइड्रोजन के साथ किया, इसके साथ भी और इसके साथ भी. अब बोलोगे कि हाइड्रोजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ क्यों किया? सो द थिंग इज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. इसने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे और शेयर करने के लिए. सो नाउ एज इट हैड 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर, तो उसने तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए, उसने तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, और वो बन गया, ये कंपाउंड बना दिया, और एक स्टेबल कंपाउंड. लेट मी गिव यू वन लास्ट एग्जाम्पल फॉर द कोवलेंट बॉन्ड. ऑल्दो we'll study more and more detailed and you will definitely learn about it, but for ending the video, let us end it with one more example. Oxygen. कार्बन का तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. ऑक्सीजन का एटॉमिक क्या नंबर होता है? If you do know, just comment in the comments below. I hope you all got it right. So the atomic number for oxygen is 8. मतलब अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ so it will look something like this. और इसका तो पता ही है क्या. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कार्बन के, और ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन से. मीन्स इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं और इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है. ठीक है. लेट्स से ऑक्सीजन है, ये कार्बन है. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ यू विल से कि लास्ट टाइम ऐसे बनाए थे, इस बार ऐसे क्यों बना रही है. सो ऑल्दो मुझे पहले ही से पता है कि मुझे क्या ड्रॉ करना है, इसलिए नीट एंड क्लीन दिखे, इसलिए ऐसा मैं बना रही हूँ. ठीक है. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. नाउ एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अगर मैं यहाँ 2 ऐड कर दूंगी तो ऑक्सीजन 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा. तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. तो ऑक्सीजन डू व्हाट? इट सेज दैट ओके आई विल गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ माइन एंड यू शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. तुम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो, मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करूँगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 ही और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो इट जस्ट सेज दैट ओके शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद मी. ठीक है. तो कार्बन सेट कि ओके आई हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई नॉट, लेट अस शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर. कार्बन ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने को मान गया. तो अब ऑक्सीजन का क्या हुआ? इसके पास तो 6 थे ही, और इसका भी 2 इसने शेयर कर लिया. तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ये तो ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी है कार्बन के. तो एक और ऑक्सीजन आ गया. लेट्स से आई हैव 1 मोर ऑक्सीजन. नाउ ये ऑक्सीजन भी सेम कहता है दैट दिस ऑक्सीजन ऑल्सो नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स. काउंट करो 1 2 3 4 5 6. 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो इट विल बिकम बैलेंस. ओके, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो ये ऑक्सीजन में कहता है कि ओके लेट अस डू व्हाट, यू गिव मी 2 इलेक्ट्रॉन्स, आई विल गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन. इससे मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. अब कार्बन के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन सब बचे हैं इसके साथ शेयर होने के बाद. सो इट हैप्पीली सेज ओके लेट्स डू दैट, क्योंकि अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर हो गए तो कार्बन भी एक ऑक्टेट फॉर्म कर लेगा. लेट्स सी हाउ. तो ऑक्सीजन ने तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, कार्बन ने भी इसके साथ शेयर किए, तो इट बिकेम लाइक दिस. ठीक है. तो ये 2 ऑक्टेट तो हो गए, और 2 ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए. अब कार्बन का देखते हैं क्या हाल है. कार्बन के पास अपने तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ही,
लेकिन इसने इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और इसने इस वाले ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। तब कार्बन के सेल में देखो तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन ने ऑक्टेट बना दिया, ऑक्सीजन ने भी ऑक्टेट बना दिया, ऑक्सीजन ने भी बना दिया। जस्ट डूइंग व्हाट? जस्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले वाले ऑक्सीजन के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरे वाले के साथ भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और इससे क्या बन गया? 1C2O, CO2 का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये जो ऐसे डॉट बना के हम जो फॉर्म कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो नाउ वी आर डन विद दिस। नाउ your homework is try making any covalent bond by electron dot structure। ठीक है, इसी तरह से डॉट डॉट और ऐसे से गोला गोला बना के यू हैव टू मेक एनी कोवलेंट बॉन्ड। जो अभी पढ़ा वो भी by memorizing or any new compound, but you have to do it because 101% ये ड्रॉ करना आपको आएगा ही आएगा टू ड्रॉ एनी कोवलेंट बॉन्ड। दे विल गिव यू कि CO2 का बनाओ, CH4 का बनाओ, कुछ भी देंगे एंड दे विल आस्क यू टू मेक वन। ठीक है ना? अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। 1 2 3 4 और लेट्स से सी, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के भी 1 2 3 4 हो गए। लेट्स से कि ये 2 कार्बन क्या करते हैं, बोलते हैं इस बार हम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, कार्बन की मर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं शेयर करते हैं। इस कार्बन को क्या प्रॉब्लम होगी? इसने कहा ठीक है कर लेते हैं। इस कार्बन ने कहा ठीक है कर लो। तब दोनों ने एक दो शेयर कर लिए, लेकिन स्टिल अभी भी 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ से इसको लूँ तभी भी 1 2 3 4 5 6 ही है। मुझे तो 2 और चाहिए और ऐसे चाहिए जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाए। तो मैं कह सकती हूँ हाइड्रोजन को ले आती हूँ। हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन एक लेके खुश है क्योंकि इसका डिप्लेट बन गया। हाइड्रोजन का तो बन गया डिप्लेट, तो हाइड्रोजन हो गया हैप्पी, इसने एक बना लिया, इधर भी इसने शेयर कर लिया। तो इस वाले कार्बन का तो अब कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन ओनली एंड बाय दैट 1 इलेक्ट्रॉन ओनली इट कैन फॉर्म डिप्लेट इजीली। बट कार्बन को तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स इन रिटर्न चाहिए होता है। तो हेयर इस वाले कार्बन ने भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की और इस कार्बन ने जो कार्बन के साथ शेयर किया था 2, वो हाइड्रोजन के साथ जो एक शेयर किया वो मिला के इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट बन गया, इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट बन गया एंड दिस हाइड्रोजन हैज देयर डिप्लेट। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? C2H4, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डबल कंपाउंड विथ C एंड सिंगल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। नाउ ये बनाने में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, इट्स कमिंग सून एंड वी विल लर्न कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस होल चैप्टर एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली. So in introduction we have learnt about carbon and the bonds it makes in very detail. In the next video we are going to know about how to draw this kind of structures and more properties about carbon. Till then, bye bye, have a wonderful day ahead. I hope you like my video. If you do like my video, so do like, subscribe and share my channel. Also share it with your friends. Till then, bye bye and have a great day ahead.